these all views जो भी आपको पीपीटी में या आई एम सेइंग, this is my personal views and not the views of ICAI or the CA Sansaar or any statutory authority or any other person. And this is not any legal advice or the professional advice or the legal opinion or professional opinion. And this is only for the purpose of education or spreading information, knowledge, awareness. And don't take it as a solicitation in any manner, whatever, for the purpose of. And before this, please also go through ICI guidance note, RBI master circular notifications, and bank's policy. So, bank branch statute audit. What's the process? So, bank branch statute audit panel is prepared and maintained by the ICI. ICI Institute of Chartered Accountant of India. ICI invites application from the chartered accountant who are into practice, who want to conduct the bank branch statute audit for nationalized bank, and through its MEF, multiple empanelment form in the month of July and August. And after MEF, once you submitted the MEF form, they called for some other information like financial documents or the returns, and after due verification, they prepare the panel and maintained by the ICI itself for the purpose of bank branch statute audit. And then once draft panel is there, then final panel is there, then final panel for bank branch statute audit, they forward it to the RBI, एंड आरबीआई उसको फॉरवर्ड करता है बैंक्स के पास, एंड देन बैंक select the auditor for different branches from that panel only. And once appointment is done, banks send the panel to the RBI for the final approval. So this is the process, so that we will discuss. So basically, bank branch statute audit, it's we can divide into three part. First is pre-commencement of the bank branch audit, what you have to do, and then commencement of bank branch audit, and then post bank branch statute audit. So first, pre-commencement of audit. So first thing जो आपको करनी है सबसे पहले, बिफोर ऑल दिस, मेजर थिंग इज कि आपको बैंक ब्रांच ऑडिट अलॉट हो जाए. दैट यू हैव टू सी. पैनल में आपका नाम आ गया बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट के, इट डजंट मीन्स कि आपको ऑटोमेटिक अलॉट हो जाएगा. माइट बी इट्स लिटिल डिफिकल्ट, बट यू हैव टू सी कि आपको बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट अलॉट हो है. एंड देन नाउ विल डू प्री कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, प्रिलिमिनरी वर्क क्या हमने करना है. फर्स्ट इज द कंसेंट फॉर ऑफर आर द एक्सेप्टेंस. मेनली वंस फर्स्ट टाइम जब आपको बैंक ब्रांच ऑडिट मिलेगा, तो banks will send you the offer letter and you have to give the consent कि yes, you want to do the bank branch statute audit for that bank. Bank will ask you. This is basically for the first timer कि जो first time audit करने हैं, because panel आपका बनेगा for 4 years. But yes, nowadays most of the bank every year they take your consent, and after that they will send you the allotment letter or the appointment letter. तो पहले आपको मिलेगा consent. And remember one thing, from the start, from 10th or 15th March, banks will start sending emails. So nowadays, please check your email on regular basis, either it's into the inbox or the spam box, because आपको accept करने में they will give you only 24 or 48 hours. Most of the cases they will give you 24 hours. तो आपको within 24 hours consent देनी है कि yes, we are ready to do the bank branch statute audit of your bank. So consent is the first preliminary work कि आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है. एंड यस, माइट बी कि हो सकता है आपको 2 या 3 बैंक्स आपको मेल कर दें फॉर कंसेंट के लिए. इट डजंट मीन्स कि आप अलग अलग बैंक्स कर सकते हो. यू कैन डू ओनली फॉर वन. तो जो आपने फर्स्ट एक्सेप्ट कर लिया, आफ्टर देन डोंट एक्सेप्ट एनी अदर. अगर एक से ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, देन आपका रिजेक्ट हो जाएगा. आई हैव सीन ए केसेस, नॉट येट, तो 3-4 साल पहले 5 बैंक्स ने ऑफर लेटर भेजा था टू सम मेंबर्स.
सो आजकल तो ऐसा नहीं है, बट यस सम टाइम 2 या 3 बैंक्स भी आपको मेल्स भेज सकते हैं, बट यू हैव टू एक्सेप्ट फर्स्ट, जो पहले आ जाए एज इट इज आप एक्सेप्ट कर लीजिए। डोंट वेट कि नहीं मेरे पास एसबीआई आएगा, एसबीआई आएगा तो भी वेट करूंगा, या बैंक ऑफ कोई दूसरा आएगा, देन यू विल एक्सेप्ट। यू एक्सेप्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जो पहले ही आपको मेल आ जाती है। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप इज द कंसेंट, कि आपको जो भी ऑफर आएगी उसकी कंसेंट देनी है। एंड देन सेकंड, after that, once you gave your consent, yes, I'm ready, then they will allot you the branches. तो ब्रांच अलॉटमेंट में दे विल आल्सो सेंड यू द अपॉइंटमेंट लेटर। तो जो ये अपॉइंटमेंट लेटर है, बिफोर एक्सेप्टिंग एंड बिफोर सेंडिंग द एंगेजमेंट लेटर, फर्स्ट रीड इट केयरफुली। इसमें भी आपको 24 आवर्स का टाइम मिलेगा या 48 आवर्स का, कि यू हैव टू सेंड द एक्सेप्टेंस लेटर अपॉइंटमेंट लेटर में। बट बिफोर दैट, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, रीड इट केयरफुली। उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन सी ब्रांचेस अलॉटेड है, क्या टाइम्स है, मैनी थिंग्स आर देयर। एंड यस, बिफोर एक्सेप्टेंस, उसमें आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी सीएसए का भी नाम होगा, प्रीवियस ऑडिटर का भी नाम होना, कौन सी ब्रांचेस आपको अलॉट हुई है, लोकल ब्रांचेस, आउटसाइड ब्रांचेस, कौन सी ब्रांचेस आपको है, दैट यू हैव टू सी। एंड बिफोर दैट, यू फर्स्ट send the communication to the previous auditor. Here the word is communication. It's not NOC. NOC कहीं भी नहीं है। इसके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाए 2-3 रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन आर NOC फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर। यू कैन चेक इट फ्रॉम द CA संसार यूट्यूब चैनल। तो कम्युनिकेट करना है प्रीवियस ऑडिटर को बिफोर एक्सेप्टेंस, नोट द NOC। तो जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेटर आता है, उसी टाइम आप मेल कर सकते हो। नाउ इट्स आल्सो वैलिड थ्रू द मेल। ICAI काउंसिल हैड डिसाइडेड कि आप मेल के थ्रू भी आप रिटर्न कम्युनिकेशन भेज सकते हो। एंड देन आपने रिटर्न कम्युनिकेशन भेज दिया, एंड देन यू हैव टू सेंड एक्सेप्टेंस लेटर, जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उसके एक्सेप्टेंस लेटर, एंड आल्सो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एज पर SA 300। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू द अंडरस्टैंड द बिजनेस, जो बिजनेस ब्रांच कर रही है, एंड द कम्युनिकेशन, कि अपॉइंटमेंट लेटर में आपको आ जाएगी कौन कौन सी ब्रांचेज अलॉट हुई है। देन यू हैव टू सी ज टाइम पीरियड, कि कितनी डेट तक आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। आइदर इट कैन बी 15 अप्रैल, या जो भी डेट उसमें आपके अपॉइंटमेंट लेटर है, 15 डेज है, 10 डेज है, 20 डेज है, दैट यू हैव टू सी। एंड ऑल्सो यू हैव टू चेक कौन सा बैंक मिला है आपको, कौन सा बैंक है, कौन सी ब्रांचेज है, एंड बैंक at that bank using which software, that we will discuss. I told you this is only an overview. डिटेल में हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। सो यू हैव टू चेक द CBS एनवायरनमेंट, कि कौन सा बैंक क्या CBS एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, दैट यू हैव टू सी। एंड देन कम्युनिकेशन विद द ब्रांच। वैसे तो ब्रांच मैनेजर विल कॉल यू कि आपके ये ब्रांच अलॉट हो रही है, बट यस अगर नहीं करते, देन यू हैव टू कॉल टू द बैंक ब्रांच मैनेजर एंड आस्क फॉर द डेट, कि व्हाट्स द टाइप ऑफ ब्रांच, इट्स वेदर इट्स ए स्मॉल, मीडियम, और व्हाट्स द नेचर ऑफ ब्रांच, कि किस टाइप का ब्रांच है, वेदर सर्विस ब्रांच है या MSME एग्रीकल्चर रूरल एरिया में किस टाइप की ब्रांच है। एंड व्हेन वी हैव टू स्टार्ट, मोस्ट ऑफ द केस बैंक मैनेजर आपके पास एक ही आंसर होगा कि अभी तो रिपोर्ट्स ही जनरेट नहीं हुई है, बट यस यू हैव टू डिसाइड योर टेल कि कब से आपने स्टार्ट करना है ऑडिट्स को। एंड यस आल्सो यू कैन आस्क व्हाट्स द क्वांटम एंड द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या पूछते हैं, एडवांसेस कितने, बिकॉज हमारी फीस जो है इट्स बेस्ड ऑन द एडवांसेस। बट यस यू कैन आस्क अदर थिंग्स आल्सो। एंड आल्सो आफ्टर दैट you can in some cases statutory reader CSA हैं जो statutory reader के साथ मीटिंग भी करते हैं, and then prepare yourself for different seminars and the webinars. And yes, now you have to plan the audit, कि आपको ऑडिट प्लानिंग करनी है। अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर ली, इट मीन्स वेल प्लानिंग मीन्स आपका 50% से ज्यादा काम तो फिनिश हो गया। एंड दिस ऑडिट प्लानिंग इज अकॉर्डिंग विद SA 300। इसके ऊपर भी हम एक डिटेल में वीडियो लेके आएंगे। तो अभी जस्ट गिविंग यू एन ब्रीफ आइडिया, जस्ट दैट्स व्हाई वी सेड इट्स एन ओवरव्यू। एंड you have to check कि how many branches are allotted to you, whether it's a 2 branches or the 3 branches or 1 branches। then you have to see कि कितना टाइम आपने allocate करना है, कौन कौन आपके साथ जाएंगे, whether your partners, whether you yourself or your articles paid staff, कौन कौन इन्वॉल्व होगा। एंड देन take the closing circular. Most of the time bank will send you the closing circulars and the instructions
बाय द बैंक्स, जो भी बैंक्स के हैं, अदरवाइज यू कैन कलेक्ट इट। एंड देन वर्किंग पेपर, आपको वर्किंग पेपर मेंटेन करने हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच, डिफरेंट वर्किंग पेपर्स। एंड लेटर, जो आपने पीछे लेटर भेजा है बैंक ब्रांच मैनेजर को, एंगेजमेंट लेटर, उसके अलावा यू कैन सेंड सम डिटेल्स, उसमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट आईसीआई ने डिसाइड किया है, यू कैन सेंड इट टू द बैंक ब्रांच मैनेजर। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिप्लाई नहीं करते definitely, but you can ask it, and you can ask for the previous auditor reports, RBI inspection report, internal inspection report, concurrent audit report, if any, उसका एक अलग से फॉर्मेट है, that we will discuss further. And then ये तो आप अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा यू कैन स्टार्ट इट। यू मस्ट हैव, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिट, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इकोनॉमी, बैंकिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड ऑल्सो टर्मिनोलॉजी यूज बाय द बैंक की क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। देन आरबीआई सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर, नोटिफिकेशन, वी विल गिव यू द डिटेल, अभी नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल देंगे ऑन द ऑडिट प्लानिंग। देन आईसीआई गाइडेंस नोट, accounting policy by the bank, accounting standards, auditing standard by ICAI, various circular, जो closing circular, manual by the bank, software, कौन सा software banks use कर रहे हैं, knowledge about the CAT rules, इसकी वो डिटेल में डिस्कशन दैट वी विल डू। बट यस, यू मस्ट हैव द नॉलेज। ऐसे नहीं है कि ऑडिट आ गया आप जाके ऑडिट कर रहे हो, नो, यू हैव सम डिफरेंट नॉलेज इंस्टेड ऑफ जो आप नॉर्मल रूटीन में ऑडिट कर रहे हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑडिट प्लानिंग। एंड देन you have to prepare an audit program. This is also, audit program is also part of the audit planning. तो आपको एक audit program, audit planning तो ये है, yes, what you have to do, and audit program how you will do. तो audit program में you have to mention, broadly mention the scope of the audit, and yes, LFAR, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। LFAR should also be the part of audit program, because जब से रिवाइज फॉर्मेट आया LFAR का, मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर इन द LFAR, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आपको डिसाइड करना है टाइम शेड्यूल क्या है, आपके पास 2 ब्रांचेज है, 3 ब्रांचेज है, कितना कितना टाइम आपको किस किस ब्रांच पे देना है। देन व्हाट ट्रेनिंग टू योर स्टाफ, जो आपके स्टाफ को है, क्या क्या ट्रेनिंग या क्या स्किल रिक्वायर्ड, या फिर आपने कौन कौन सा एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया है टू योर स्टाफ पार्टनर्स की, लाइक हु विल डू द LFAR work, who will do the other audit advances work, deposit work, cash verification, तो that it's into the audit program। इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देन आफ्टर that was the part of the audit planning, कि आपने एक बैंक ब्रांच ऑडिट प्लान किया। नाउ you have to commence the audit। तो once you reach the branch, now what you have to do, क्या करना है आपने। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रिव्यू समथिंग, कि कुछ आपको देखना है कि व्हाट्स द साइज ऑफ द ब्रांच, देन व्हाट्स द टोटल बिजनेस में व्हाट्स द डिपॉजिट्स, कितने एडवांसेस हैं, एंड द टाइप ऑफ एडवांसेस, किस टाइप के एडवांसेस हैं, नंबर ऑफ एडवांस अकाउंट, कितने टोटल अकाउंट्स हैं, एंड द अमाउंट ऑफ एंड परसेंटेज ऑफ एनपीए। अगर बैंक ने इट सेल्फ एनपीए निकाला है तो कितना एनपीए है, व्हाट्स द परसेंटेज। एंड ऑल्सो अगर आपको बैंक मैनेजर ने पहले भेज दिए हैं दीज थिंग, देन गो थ्रू, अदरवाइज गो टू द बैंक एंड देन आस्क फॉर दिस थिंग। लेटेस्ट आपकी जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, कंकरेंट ऑडिट, अगर ब्रांच इज एलिजिबल यू कैन आस्क फॉर द कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट। देन आस्क फॉर द रेवेन्यू ऑडिट रिपोर्ट, आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट, लास्ट ईयर स्टैट्यूटरी LFAR जो भी पूरा सेट है लास्ट ईयर का, you can ask for that, RBI master circular, closing circular, and also that's the part of your file that we will discuss into the audit documentation। वो आपको जो भी है सेट है, आप उनकी एक एक कॉपी लीजिए, and also maintain a file that's required for the audit documentation, it's required for the purpose of peer review, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो अगर किसी पार्टी का स्टॉक ऑडिट है तो आस्क फॉर द स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, अगर किसी एनपी है उसका फोरेंसिक ऑडिट है तो यू कैन आल्सो आस्क फॉर दैट। एंड प्लस देन these things you should ask from the बैंक ब्रांच मैनेजर एंड रिव्यू इट, क्योंकि इसी के बेसिस पे यू कैन डू योर ऑडिट। एंड बेसिकली बैंक ब्रांच ऑडिट बेसिकली क्लास, इफ यू कैन बाइफरकेट, तो बाइफरकेट यू कैन डू इट इन द फॉलोइंग हेड्स। तो एक तो है ब्रांच स्टैट्यूटरी, कि जो आपने ब्रांच स्टैट्यूटरी करना है उसमें करना क्या है। तो बेसिकली यू हैव टू डू द ऑडिट ऑफ एडवांसेस एंड रिपोर्टिंग ऑन द
divergence in assets classification and the income recognition, and which is generally reported through the MOC, which is the part of main audit report, and audit of all other items of assets and liability and income and expenditure appearing in financial statement. So जो बैंक, if one bank, तो उसका main what's bank do? That's we know. मेनली बैंक्स डील्स इनटू द डिपॉजिट्स, कि आप उनके अकाउंट्स ओपन करते हैं, आप डिपॉजिट्स लेते हैं, एंड आल्सो गिव्स द लोन्स जो एडवांसेस के थ्रू, दिस मेन थिंग इज देयर, अदर थिंग बैंक्स आर डूइंग, बट मेन जो बैंक्स एसेट्स इज डिपॉजिट्स, तो बेसिकली इट्स देयर लाइबिलिटीज कि आपको पेमेंट करनी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, बट द लोन्स एंड एडवांसेस विच यू आर गिविंग, दैट्स योर एसेट्स. तो बैंकिंग इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो एडवांसेस, तो वी हैव टू ऑडिट ऑफ द एडवांसेस, और उसके ऊपर रिपोर्ट करना है. कुछ नॉर्म्स हैं आरबीआई के, उसके ऊपर वी हैव टू सी वेदर इट्स ए डाइवर्जन इज देयर फॉर द एसेट्स क्लासिफिकेशन में या इनकम रिकॉग्निशन में. इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन दैट वी विल डू इन फ्यूचर. बट अभी आप ये सोच लीजिए कि आपको दीज वर्क्स यू हैव टू डू, एंड देन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन most of the banks they are doing into the head office level, but yes कुछ banks अभी भी करवा रहे हैं the branch level, but because tax audit is on the basis of assesses branches के ऊपर tax audit applicable नहीं होता, it's on the bank itself. तो उसमें से भी कुछ है that we will discuss. And then LFAR. LFAR is basically, LFAR में क्या कवर होता है, ऑपरेशनल एंड कंट्रोल एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रांच वर्किंग. एंड जब से रिवाइज वर्जन आया LFAR का, मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर इन द LFAR. So that's why I said earlier कि LFAR should be the part of the audit plan, and LFAR should be the part of the audit plan that we will discuss. And after that you have to check many certificates. आपको बहुत सारे certificates देने हैं. For example cash certificates, then capital adequacy ratio, IRAC norms certificates, then interest subvention, ghost jalani. And remember one thing, सर्टिफिकेट्स आर वेरी डेंजरस. हम लोग ध्यान नहीं देते सर्टिफिकेट्स के ऊपर. ऑडिट रिपोर्ट में फिर भी आप ओपिनियन दे रहे हो फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस बिफोर अस, बट सर्टिफिकेट यू आर सर्टिफाइंग. So my request to you, before going to sign any certificate, please check thoroughly, because your certificate means आप certify कर रहे हो, this it's the correct thing. तो ध्यान रखना उसके ऊपर. सो ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें इसको बैंक ब्रांच ऑडिट को, देन दिस फोर थिंग्स आर देयर. तो हम इसको अब डिटेल में देखते हैं क्या क्या हमें करना है. तो बेसिकली फर्स्ट इज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश सिक्योरिटी पेपर्स, देन ऑडिट्स में आपका डिपॉजिट्स का ऑडिट्स एंड द वेरिफिकेशन दैट वी विल सी, एडवांसेस, सन्नी एसेट सस्पेंस अकाउंट, सन्नी लाइबिलिटीज, इंटर ब्रांच रिकंसिलिएशन, फिक्स एसेट्स, कंटीजेंट लाइबिलिटी, income heads, expenditure heads. That's we have to see. तो one by one let's see. जो कैश का वेरिफिकेशन है, कैश वेरिफिकेशन में आपको एक सर्टिफिकेट देना है, कैश वेरिफिकेशन द ऑन 31 मार्च. तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके पास इन लोकल ब्रांच अलॉट हो रही है, देन यू मस्ट गो टू द ब्रांच ऑन 31 मार्च एंड चेक द कैश बैलेंस. अगर आप नहीं जाते, देन यू कैन सर्टिफाइड द कैश बैलेंस ऑन एनी अदर डेट्स. फॉर एग्जांपल आपने 4 अप्रैल या 5 अप्रैल को यू चेक द कैश बैलेंस, और इन बिटवीन आप चेक कर सकते हो क्या क्या कैश ट्रांजैक्शन है, क्या डिपॉजिट है, क्या विड्रॉल है. उसके बेसिस पे 31 मार्च का तो आपको देना ही है सर्टिफिकेट. अदर डेट्स जो भी है 4th and 5th अप्रैल का, उसको चेक करके यू कैन सर्टिफाई इट, एंड यू कैन टेक बोथ द कॉपीज. उसकी आप कॉपीज ले सकते हो. एंड आल्सो एटीएम भी है अगर आपके ऐप उसके ऊपर, देन आल्सो एटीएम यू हैव टू सी वेदर इट्स ऑपरेटेड बाय द ब्रांच इटसेल्फ और बाय द हेड ऑफिस. तो आपको एटीएम का भी कैश सर्टिफाई करना है. एंड इसमें भी in the audit plan you can give this duty to your articles या the paid staff जो भी है, because स्टार्टिंग में जब हमने भी कैश सर्टिफाई इतना ज़्यादा कैश ब्रांच में देके वी वर सो मच हैप्पी. तो ये आप किसी भी ड्यूटी लगा सकते हो कैश को सर्टिफाई करना, दे कैन चेक इट आउट. देन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का भी हमने चेक करना है वेदर the branch are maintaining fixed assets register either online or the offline. And then you have to check कोई नई assets purchase करी है during the year and new assets purchase करी है, then you have to check the physical verification कि कुछ computers purchase किए हैं, whether या TV purchase किए हैं. In one case we have seen
कि न्यू टीवी परचेज, पता चला जी वो टीवी ब्रांच में नहीं है, ब्रांच मैनेजर के घर पे है, दैट यू हैव टू चेक कि वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट उसमें है that has been purchased in during the year. And then depreciation chart, most of the time depreciation chart आपका head office level उसमें मर्ज होके आ जाता है, but you can also check it there. Then is bank reconciliation, कि अगर ब्रांच का, बैंक ब्रांच का किसी और बैंक में या किसी ब्रांच में अकाउंट है, देन यू हैव टू गो थ्रू द रिकंसिलिएशन, 31 मार्च की उनकी स्टेटमेंट है, रिकंसिलिएशन है या नहीं है. देन इंटर ब्रांच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. इंटर ब्रांच, जैसे इफ आई एम डूइंग ए बैंक ऑडिट फॉर वन ब्रांच, दैट यू हैव टू सी ब्रांचेस आर डूइंग ट्रांजेक्शन, किस किस ब्रांच के साथ ट्रांजेक्शन कर रही हैं और उनका 31 मार्च को वेदर इट्स रिकंसाइल्ड आर नोट. एंड ऑल्सो यू हैव टू गो थ्रू द आरबीआई सर्कुलर कि आपके कोई प्रोविजंस भी मेंटेन, 6 मंथ से ओल्ड कोई अकाउंट्स हैं अगर आपके इंटर ब्रांच में, देन सम प्रोविजंस आर देयर या नहीं, वो आपको पूरा डिटेल में चेक करना है. एंड देन वेरिफिकेशन और द ऑडिट ऑफ द डिपॉजिट्स. आई टोल्ड यू बैंक्स का क्या काम है, या तो डिपॉजिट्स या एडवांसेस. सो डिपॉजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. डिपॉजिट्स बैंक्स के पास, दे गिव यू द मनी और उसी मनी को आप आगे लैंडिंग करने में यूज कर रहे हैं एडवांसेस में. सो डिपॉजिट्स यू हैव टू चेक वेरी केयरफुली कि फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी जो डिपॉजिट्स में के जो डेबिट बैलेंस है इन करंट अकाउंट या समटाइम इन सेविंग अकाउंट्स. सो दैट डेबिट अकाउंट्स उसको आपने चेक करना है बी इनटू द एडवांसेस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि कोई डेबिट बैलेंस है आपका करंट अकाउंट में, या इफ बाई चांस इनटू द सेविंग अकाउंट, देन इट्स टू बी इनटू द एडवांसेस. सो डिपॉजिट्स में क्या हो सकते हैं, आपका टर्म डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FCNR, NRE अकाउंट. सो आपको चेक करना है कंप्लाइंस, उसकी कंप्लाइंस चेक करने हैं, केवाईसी कंप्लाइंस ऑफ द केवाईसी नॉर्म्स एंड द AMC गाइडलाइंस. तो जितने भी न्यू अकाउंट्स हैं आपको कुछ टेस्ट चेक बेसिस पे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या FDs है, वो पूरे आपको, आप किसी की भी ड्यूटी लगा दीजिए उसमें, वो आप अपने ऑडिट प्रोसीजर में आपने मेंशन किया होगा. दैट विल आल्सो डिस्कस कि आप कैसे कर सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम्स में. सो आप चेक करिए. एंड देन जो भी लार्ज डिपॉजिट्स हैं एट द एंड ऑफ ईयर, कि कुछ एंड ऑफ ईयर में अगर कुछ बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स हैं अमाउंट्स, उसको आप टेस्ट बेसिस पे चेक कर सकते हैं. देन व्हाट्स द RBI नॉर्म्स फॉर दिस FCNR, NRE अकाउंट. एंड देन इंटरेस्ट, वैसे तो आजकल CBS थ्रू, सारे CBS थ्रू वर्किंग हो रही है, बट ऑन टेस्ट चेक बेसिस पे यू कैन चेक इट आउट interest, because you have to mention into the LFAR also. And also प्लीज चेक अबाउट द फॉर्म 15G एंड 15H, जिसमें लेस TDS है कि आप कितने इंटरेस्ट तक TDS नहीं डिडक्ट करना. तो दैट आल्सो यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक इट आउट. एंड आल्सो प्लीज चेक द इनऑपरेटिव अकाउंट एंड द डोरमेंट अकाउंट. इनऑपरेटिव अकाउंट अगर ऑपरेटिव हो गए तो प्लीज चेक द डिटेल्स in the last month या 31 मार्च को, उसके आसपास in the month of March, then you have to see the inoperative accounts also. Then next is, which I told you is the very very important, audit of advances. Advances is the very important part of any bank. तो इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट यस, लेट्स गिव यू एन ब्रीफ आइडिया अबाउट द क्लास एडवांसेस. फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस. क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस इट कैन बी फॉर अदर्स आल्सो, बट मैंने जो लिया है, फर्स्ट इज सेक्टर वाइज, then is security wise, another one is fund wise, then prudential norms wise. Isko also you can say that area wise, like in India external internal, usme काफी other also detail है, but let's first discuss about the sector wise. So sector wise में advances can be classified into the priority sector and the non priority sector. जो जितने भी banks हैं, they have to give advances some percentage for the priority sector. प्रायोरिटी सेक्टर में क्या है, एग्रीकल्चर, MSME, उसमें भी लिमिट्स है कि इतने तक अमाउंट इफ यू गिव फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर. टू मोटिवेट दिस प्रायोरिटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स. इसमें भी कुछ डिस्कशन है दैट वी विल डू. इसके ऊपर भी एक फुल फ्लेज वीडियोस आएगा, व्हाट विच वन इज द प्रायोरिटी सेक्टर एंड व्हाट्स द परसेंटेज, व्हाट्स द लिमिट. सो अभी
we can understand the priority sector. Then secured and unsecured, security wise, कि कुछ जो एडवांसेस हैं जिसके अगेंस्ट आपके पास कुछ सिक्योरिटी है, either with the primary or the collateral securities है, and that security जो अगर हमने देन दैट्स द सिक्योर्ड लोन, एंड सिक्योरिटी को अपने हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्गेज, लीन, इसमें क्या डिफरेंस है, दैट वी विल आल्सो डिस्कस. देन द फंड वाइज, फंड बेस्ड में या तो इट कैन बी कैश क्रेडिट, देन ओडी लिमिट, टर्म लोन, एक्सपोर्ट पैकिंग, बिल्स डिस्काउंटिंग, एग्रीकल्चर लोन आर द क्रेडिट जो किसान क्रेडिट है, किसान कैश क्रेडिट है. देन बैंक क्रेडिट, नॉन फंड में आप देखेंगे तो बैंक क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके ऊपर भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. आई टोल्ड यू दिस इज एन ओवरव्यू, बट डिटेल में वन बाय वन दैट वी विल डी. देन पोटेंशियल नॉर्म्स जो आईरेक नॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे इट कैन बी आइदर स्टैंडर्ड और द एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो स्टैंडर्ड में भी फर्दर क्लासिफाई इनटू द रेगुलर और द स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, एसएमए, एंड द एसएमए में भी अगर हम फर्दर देखेंगे तो एसएमए 0, एसएमए 1 एंड एसएमए 2. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एसएमए 0 क्या है, मींस अकाउंट शोइंग द स्टेटस सिंगुलर, तो दिस इज मतलब आपके कोई ओवरड्यूज नहीं है. देन एसएमए 0, एसएमए 1 मींस वो एसएमए 0 है, इस 0 to 30 means it's showing the stress signal, and SMA1 is basically which are overdue between 31 to 60 days, and SMA2 which are overdue from 61 to 90 days. इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यू शुड आस्क फ्रॉम द ब्रांच फॉर SMA1 2 फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर. एंड देन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, D1, D2, D3 and the loss assets. So this is the classification of advances. And then अगर आप अपने एडवांसेस का ऑडिट करना है तो बेसिकली एडवांसेस को वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. जो एडवांसेस हैं, एक तो एडवांसेस विच आर सैंक्शन ड्यूरिंग द ईयर, जो आपके व्हेन यू आर डूइंग द ऑडिट, एंड सैंक्शन इन दैट ईयर ड्यूरिंग द ईयर, एंड कुछ ओल्ड एडवांसेस, नए न्यू एडवांसेस एंड द ओल्ड एडवांसेस जो पहले से सैंक्शन हो सके. तो उसको कैसे कैसे चेक करना है. सो न्यू एडवांसेस है जो आपके सैंक्शन ड्यूरिंग द ईयर है, उसमें यू हैव टू चेक क्रेडिट अप्रेजल, उसमें क्या क्या चेक करना है. देन सैंक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन में, डिसबर्समेंट में, एंड देन रिव्यू, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, दैट कंप्लीटली वी विल डिस्कस. एंड देन ओल्ड लोन, उसमें ओल्ड लोन में चेक करना है कि वो किस क्लासिफिकेशन में थे, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, एसेट क्लासिफिकेशन. देन ऑपरेशन इन अकाउंट एज पर द सैंक्शन लेटर, जो सैंक्शन लेटर्स है उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, लाइक स्टॉक स्टेटमेंट या अदर थिंग्स, वेदर दे आर डूइंग और नॉट. देन प्रोविजनिंग एज पर आईरेक नॉर्म्स, इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड एज पर आईरेक नॉर्म, रिव्यू, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, इसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे. देन सिलेक्शन ऑफ द एडवांसेस, कि आपको कौन कौन से एडवांस, क्योंकि ब्रांच में तो लाइक काफी सारे एडवांसेस हैं, कौन कौन से आपको चेक करते हैं. तो टॉप जितने भी आपके बोरोवर्स हैं, टॉप एडवांसेस हैं, दैट यू हैव टू चेक. तो सबसे जो एक बेस्ट फार्मूला, यू कैन आल्सो यूज योर माइंड, आपकी मर्जी है आप कितने कर सकते हैं, बट बेस्ट थिंग है कि जो टॉप 20 बोरोवर्स हैं, take the list of top 20 borrowers, and after that check the different segment, 3-5 फाइल्स आप डिफरेंट सेगमेंट से, जैसे फॉर एग्जांपल व्हीकल लोन है या हाउसिंग लोन्स है, तो उसमें आप 3-4 या आपकी कैश क्रेडिट्स है, ऑडिट लिमिट्स है, 3-4 या 5 फाइल्स आप ले सकते हैं ऑन द टेस्ट चेक बेसिस पे, बिकॉज टोटल तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक चेक कर पाओ. 3 to 5 फाइल्स यू कैन टेक फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट. एंड यस, जो लफार की रिक्वायरमेंट है, लफार में आपको डिटेल मेंशन करनी है, दैट्स द आउटस्टैंडिंग मोर देन 10% ऑफ द एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग ब्रांच एडवांसेस ऑफ or rupees 10 crore, whichever is less, because now you have to give the detail of the advances जो आपने चेक कर रहे हैं, कौन कौन से एडवांस चेक कर रहे हैं, उनके अकाउंट, आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को क्या थे, all details you have to give into the LFAR. वो भी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. And then IREC norms, I told you RBI gave this IREC norm, income recognition, assets classification, and the provisioning pertaining to advances. So this IREC norms, RBI had issued one circular in July 2015. उसके अंदर पूरी complete list है. And then in latestly for this year
अक्टूबर 21 में एक आईरेक नॉर्म्स के ऊपर सर्कुलर आरबीआई ने इशू किया, एंड देन नवंबर 2021 में एक अनदर सर्कुलर, पहले अक्टूबर 2021 में, देन नवंबर 2021 में। हाँ, जुलाई के बाद भी 2016 एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट इन 2021 दे इशूड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, और अभी एक और सर्कुलर इशू है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2022। उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या आईरेक नॉर्म्स हैं। तो उसमें बेसिकली इट्स डिवाइडेड इनटू जनरल आईरेक नॉर्म्स की क्या इनकम रिकॉग्निशन, एसेट्स को कैसे आपने क्लासिफाई करना है, देन रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, देन अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, प्रोविजनिंग नॉर्म्स की एनपीए वगैरह क्या है, कैसे आप उसको चेक करना है, ऑल दिस इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ऑडिट ऑफ एनपीएस। तो एनपीएस, जो I told you, as per IRAC norms, assets can be classified into the standard or the NPA। NPA है क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो एडवांसेस जो भी है, दिस इज द बेसिकली इट्स द एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन सी है? उसका एक ही मीनिंग है बेसिकली, जो हम डिस्कस करते हैं, विच सीज टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक, एंड या उसको ये कह सकते हैं जिसका रिस्क मोर देन द स्टैंडर्ड रिस्क है, उसको हम एनपीए क्लासिफिकेशन में ले सकते हैं। सो क्राइटेरिया क्या है कि कैसे एनपीए को हम आइडेंटिफाई करें? तो बेसिकली थ्री क्राइटेरिया इज देयर। First is financial parameter, second is non-financial parameter, and third one is due to erosion in the value of security and frauds. So पहला जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, जो आईरेक नॉर्म्स में भी मेंशन है, कि इफ यू आर नॉट सर्विसिंग ऑफ द एडवांसिंग फॉर स्टिपुलेटेड पीरियड, कि आप कुछ टाइम के लिए लाइक 90 डेज है या कैश क्रेडिट में आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट्स हैं, अगर आप उसको सर्विस नहीं कर रहे हो, देन this account be the NPA. This will discuss completely, it's more than 90 days है तो completely discuss करेंगे। then नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर क्या है? तो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर में क्या है? इनहेरेंट वीकनेस इन द अकाउंट, की कोई अकाउंट है जिसमें बहुत ज्यादा चेक बाउंस हो रहे हैं या कुछ क्रेडिट नहीं हो रहा, और एडवांसेस ले रखे हैं उन्होंने, बट कुछ चेक्स बाउंस हो रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट नहीं है, तो दैट आल्सो विल डिस्कस। देन नॉन अचीवमेंट ऑफ डीसीसीओ, फेलियर टू कंप्लाई विद द की रिस्ट्रक्चरिंग कंडीशंस, उसमें आपके सैंक्शन लेटर में जो कंडीशन है उसको कंप्लाई नहीं कर रहे, या की रिस्ट्रक्चरिंग कंडीशन है उसको नहीं कंप्लाई कर रहे। एंड देन थर्ड वन इज ड्यू टू इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रॉड्स, कि अगर कुछ सिक्योरिटीज की वैल्यू कुछ अमाउंट है उसमें मेंशन है 50% या 10%, उससे डाउन है तो उसको डायरेक्ट आउटफुल में ले जा सकते हो, या दूसरे में उसमें losses सेट्स में ले सकते हो। तो दैट आल्सो विल डिस्कस, दैट आल्सो कैन बी द एनपीए। एंड देन फ्रॉड, इन केस ऑफ फ्रॉड जो SA 240, तो उसको भी आप डायरेक्टली एनपीए, कोई फ्रॉड्स है अगर आपको लगता है इट इज फ्रॉड, देन टेक इट डायरेक्टली टू द एनपीए अकाउंट। एंड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है ऑन द एनपीए, इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से कि जो एनपीए है, एनपीए क्लासिफिकेशन इज ऑन द बोरोअर वाइज, इट्स ऑन द बोरोअर्स वाइज, नॉट द फैकल्टी फैसिलिटी वाइज, कि आपने कौन सी फैसिलिटी ले रखी है कि एक फैसिलिटी को हम एनपीए कर दो अदर को नहीं। नो, इट्स द बोरोअर वाइज, कि अगर एक अकाउंट उसका एनपीए है तो सारे के सारे अकाउंट्स आ जाएगा एनपीए। कुछ उसमें एक्सेप्शंस भी हैं, दैट विल डिस्कस। देन सेकंड इज डेट ऑफ एनपीए। डेट ऑफ एनपीए इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इवन आरबीआई सेड सो मेनी टाइम्स कि आप 31 मार्च को एनपीए को करते हो, उससे पहले भी इसके ऊपर भी हम कुछ केस स्टडी डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। तो यू हैव टू चेक समटाइम, इवन आपका जो बैंक्स का ब्रांच का सॉफ्टवेयर है वो भी स्किप कर देगा आपको दिस एनपीए को। तो दैट यू हैव टू सी वेरी केयरफुली डेट ऑफ एनपीए। एंड देन सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन है एनपीए। कोई अकाउंट अगर एनपीए है, फॉर एग्जांपल किसी अकाउंट्स को मिस्टर ए का अकाउंट है एंड इट बिकम्स एनपीए, उसमें कुछ 10,000 या 20,000 पेमेंट्स नहीं आई तो एनपी हो गया, बट ही हैज सम अदर अकाउंट जिसमें हो सकते हैं 100 करोड़ की ट्रांजेक्शन हो या 20 करोड़ की सिक्योरिटी हो, तो कुछ भी नहीं चेक करना। तो एक चाहे एनपी आपका 100 रुपीज की वजह से है, कितनी मर्जी सिक्योरिटी है, एनपीए मीन्स एनपी। तो दैट यू डोंट हैव टू चेक कि क्या सिक्योरिटी है, नो नीड टू चेक फॉर दैट। एंड देन कंपेयर द लिस्ट ऑफ एनपीए, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के साथ क्या डिस्कस कर कंपैरिजन करना है। देन वन इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको जो अकाउंट्स लेने हैं उनसे एडवांसेस विद जीरो या नील रेट ऑफ इंटरेस्ट,
इसमें हो सकता है कुछ स्टाफ एडवांस हो, तो दैट यू हैव टू चेक केयरफुली कि नील रेट पे बैंक को अलाउड नहीं है ब्रांचेस को, तो आपको वो चेक करने हैं। देन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस डेबिट बैलेंस, कोई करंट या सेविंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ एडवांसेस। और अगर वो 90 डेज से ज़्यादा ही आपके डेबिट उसमें आ रहे हैं तो इट कैन बी इनटू द एनपीएस। देन ऑडिट ऑफ अदर आइटम्स इन द बैलेंस शीट। तो अदर आइटम्स में क्या है, दैट यू हैव टू चेक इन्वेस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड, अदर कंटीजेंट लायबिलिटी। तो इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली आपकी या तो इट्स ऑन द हेड ऑफिस लेवल या फिर आपके बिग ब्रांचेस हैं, दे डील्स इन द इन्वेस्टमेंट, तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। सस्पेंस अकाउंट इज वेरी, या संडे डिपॉजिट अकाउंट कोई अकाउंट है दैट यू हैव टू चेक कि हो सकता है कुछ एंट्रीज इधर मेंशन कर रखी है, तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस अकाउंट, क्या ट्रांजैक्शन है इनटू द सस्पेंस अकाउंट। देन इंटर ऑफिस रजिस्टरमेंट अकाउंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपको कैसे उसको रिकंसिलिएशन करना है। इंटरेस्ट एक्रूड, अदर्स एंड द कंटीजेंट लायबिलिटीज में भी हम डिस्कस करेंगे। कोई सूट्स है ब्रांच के ऊपर किसी ने फाइल कर रखा है, या कुछ और ड्यूज हैं जिसके लिए वो कुछ इश्यूज हैं, तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी में दैट वी विल डिस्कस। एंड देन ऑडिट वेरीफाई ऑफ एक्सपेंडिचर, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स हैं, यहाँ पे अभी हमने डिस्कस करी थी बैलेंस शीट आइटम्स। नाउ हियर इज द प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स, क्योंकि वहां पे हमने मेंशन किया था कि आपको ऑडिट ऑफ द एडवांसेस एंड द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स की। तो प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स में बेसिकली आपको क्या चेक करना है, जो आपकी इनकम्स है, जो एडवांसेस है उसके बेस पे इंटरेस्ट इनकम आ रही है, या फिर एक्सपेंडिचर्स आपने करे, या सम अदर इनकम्स है, बैंक इन्वॉल्व इन सम अदर एक्टिविटीज, तो उसकी जो इनकम्स आ रही है। तो बेसिकली तो इंटरेस्ट जो भी है सारा आपका सीबीएस के थ्रू है, ऑल द अकाउंटिंग थ्रू द सीबीएस। यू कैन गो टू द टेस्ट चेक के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कुछ अकाउंट्स वगैरह की इनकम्स वगैरह ठीक तरह से जनरेट हो रही है नहीं, वेदर इट्स रेवेन्यू लीकेज वगैरह केस है, या तो उसके ऊपर आप टैक्स चेक बेसिस पे यू कैन रिलाई ऑन द डेट सीबीएसई इटसेल्फ। एंड देन एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो डिपॉजिट्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एंड द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन एंड द कंटीजेंसी, तो आपको इवन लफार में भी रिपोर्टिंग करनी है कि जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, whether on the test check basis interest from deposit revealed any excess showed debit of material amount, उसी तरह से आपको जो इनकम है उसी की उसके बेसिस पे भी आपको लफार, आई टोल्ड यू लफार में मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे कवर, काफी कुछ आपको लफार में दे हैड इंक्लूडेड। तो लफार तो स्टार्टिंग्स में भी बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट आप उसका एक ड्राफ्ट फॉर्मेट ले लीजिए एंड रीड गो थ्रू द thoroughly, उसकी पूरी डिटेल चेक करिए लफार में, मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर इन द लफार इटसेल्फ। एंड देन इसमें अदर क्वेश्चन इन द लफार, आर देयर एनी डाइवर्जेंट ट्रेंड्स इन मेजर, तो आपको क्या चेक करना है, जो एक्सपेंडिचर है आपको, जो करंट ईयर दिस ईयर एक्सपेंडिचर विद द प्रीवियस एक्सपेंडिचर, उसको आप कंपेयर करिए। इवन यू कैन कंपेयर द रेशियो एनालिसिस कि इस ईयर इतना था एकदम से कम कैसे हो गया या एकदम से ज्यादा कैसे हो गया, दैट आल्सो यू कैन चेक इट आउट। एंड देन लफार, लफार आई टोल्ड यू आफ्टर रिवीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो लफार के बेसिस पे भी अगर लफार को पूरा आप गो थ्रू कर लोगे तो मैक्सिमम थिंग्स लफार प्लस एडवांसेस, तो आपका ऑडिट वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो लफार में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके ऊपर भी कोशिश करेंगे। वैसे तो एक वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड द वेबिनार ऑन द लफार लास्ट टाइम, तो आप उसको भी चेक कर लीजिए, नहीं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो थिंग है दैट आल्सो वी विल डिस्कस। तो फर्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द लफार इज लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में क्या है, जो क्वेश्चनर है, मैं शुरू से कह रहा हूँ आपको, लफार का जो क्वेश्चनर है उसको थोरोली चेक करिए। एंड देन जो लफार यू हैव टू प्लान विद द ऑडिट प्लानिंग जो आप कर रहे हैं उसमें उसका पार्ट बनाइए। एंड आल्सो डन विद द स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट आप कंप्लीट कर रहे हो उसके साथ में फ्रॉम द डे 1 से लफार पे वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए। एंड देन कंप्लीट एंड सबमिट, जैसे ही आप उसके साथ, ये नहीं कि आप लास्ट में कि पूरा ऑडिट कंप्लीट हो गया लास्ट में आपको लफार का याद आ गया कि यस लफार भी है उसको भी फिलअप करना है, डोंट डू इट। आप साइमल्टेनियसली साथ के साथ लफार भी वर्क स्टार्ट करिए ऑडिट के साथ। जैसे आप एडवांसेस किसी एक को दे दिया लफार समवन इज डूइंग, तो दैट यू हैव टू डू, ऐसा नहीं है कि लास्ट में डू। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं विच आर कॉमन विद अदर्स, इंटरलिंक्ड है। देन ऑडिट रिपोर्ट्स एंड एमओसी, ऑडिट रिपोर्ट जो आपको इश्यू करनी है टू द ब्रांच, इट्स विद द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट
ऑन द बेसिस ऑफ SA 700 जो ICAI ने इशू किया है, SA 700 के बेसिस पे, एंड आल्सो द MOC. MOC is also the part of the audit report. Remember this thing. तो MOC क्या है? MOC is the memorandum of changes. जो आप कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई एरर है इन दिस ड्यूरिंग द ऑडिट, या सम ओमिशन, या क्लासिफिकेशन में इश्यूज है, या प्रोविजनिंग में कुछ इशू है, देन आपको एक MOC, आप ऐसा तो नहीं है नहीं कि आप जैसे टैली में करते हैं कि आप रेक्टिफाई करा एंड ठीक है, नो, आपको एक MOC इशू करना पड़ेगा. MOC के नाम से मैनेजर को पता नहीं क्या हो जाएगा, बट यस यू हैव टू डू इट. आपको इशू करना है. MOC कैन बी, उसको कैसे कैसे आपका क्या कहाँ कहाँ इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड NPS वगैरह में, दैट यू हैव टू चेक. तो उसका MOC आपको देना है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट. तो वो भी, एंड अगर कोई MOC नहीं है, then also you have to do the nil MOC. That's also the part of independent audit report. So this is regarding the independent audit report and the MOC. Then is tax audit report. Tax audit report, basically I told you earlier, मोस्ट ऑफ द बैंक्स अब इसको हेड ऑफिस लेवल पे कर रहे हैं. हेड ऑफिस लेवल पे इवन कई बैंक्स तो फीस ही नहीं पे कर रहे हैं उसको. पहले एडिशनल फीस मिलती थी आपको टैक्स ऑडिट की, नाउ इट इट्स ऑन द हेड ऑफिस लेवल. बट यस, आपको कुछ और पॉइंट्स चेक करने हैं. फॉर एग्जांपल 15G 15H, उसके ऊपर लाइक किसी ने 15G 15H दिए फॉर लोअर और नॉन डिडक्टेड लोअर रेट ऑफ TDS और नॉन TDS के ऊपर. बट आपको वो भी चेक करना है कि वेदर उसके अकाउंट में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट तो क्रेडिट नहीं हो रहा, कि मोर देन 3 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, तो देन यू हैव टू डिडक्ट द TDS. फिर तो फॉर्म यूज अगर उसमें सेट कर दोगे कि यस इसका फॉर्म 15GH रिसीव हो गया, तो आपका सॉफ्टवेयर तो डिडक्ट ही नहीं करेगा. बट दैट यू हैव टू चेक द मैनुअली कि कितने अमाउंट तक है. देन आल्सो TDS ऑन रेंट एंड द प्रोफेशनल फीस. रेंट आपको इवन एट द टाइम ऑफ एक्सपेंडिचर, जब हम प्रॉफिट एंड लाइट लॉस की आइटम चेक कर रहे थे, तो आपको रेंट में देखना है रेंट डीड है या नहीं, एंड वेदर द रेंट डीड रिन्यूड और नॉट. कई केसेस में तो रेंट डीड रिन्यू ही नहीं होती, तो दैट्स आल्सो चेक. कोई डिस्प्यूट तो नहीं है आपके लैंड ओनर के साथ. एंड देन TDS का प्रॉपर्ली डिडक्ट हो रहा है नहीं, कोई प्रोफेशनल फीस है, या TDS रिटर्न तो वैसे हेड ऑफिस लेवल वगैरह पे है. देन अदर थिंग जो हम टैक्स ऑडिट में नॉर्मली करते हैं, हाँ यस, कोई अगर MSME सप्लायर का कोई इंटरेस्ट है, पेमेंट वगैरह या प्रीपेड एक्सपेंडिचर, दैट यू हैव टू चेक एंड रिपोर्ट. एंड देन सर्टिफिकेट्स. मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्टिफिकेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट हम उसको लाइटली ले लेते हैं, साइन कर देते हैं या कुछ नहीं. बट आपको चेक करना है जो सर्टिफिकेट, उसको ऑडिट रिपोर्ट में तो फिर भी कुछ ओपिनियन है, बट सर्टिफिकेट में यू आर सर्टिफाइंग दैट, कि अगर आपने सर्टिफाई दे दिया कि कैश इतना है तो इतना ही है. यू कांट से कि मेरे सामने रिपोर्ट्स आई थी या बुक्स ऑफ अकाउंट थी या चेक किया. नो, यू आर सर्टिफाइंग दिस थिंग. तो वेरी केयरफुली आपको सर्टिफिकेट्स को चेक करना है. इसमें सर्टिफिकेट में आपका इंटरेस्ट सबवेंशन है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज है, आयरक के ऊपर से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको चेक करने हैं उसके ऊपर. देन साइन, उसको आपको साइन करना है. एंड यस, एक लास्ट में, वैसे मोस्टली ये मैंने भी लास्ट में लिए, एंड अदर केसेस अगर बैंक में ऑडिट भी कर रहे हैं तो भी लास्ट केसेस में होता है. कई बार तो भूल ही जाते हैं, घोष जलानी कमेटी की रिकमेंडेशन है, बैंक मैनेजर फोन आते सर वो घोष जलानी रह गए. तो और हम भी बिना बिना देखे, इवन समटाइम बैंक मैनेजर इटसेल्फ वो खुद ही यस नो यस नो यस नो कर देते हैं. बट इसको भी बहुत केयरफुली चेक करना है आपने. घोष चलानी, इसके ऊपर भी हम पूरा वीडियो लेके आएंगे. घोष चलानी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. घोष चलानी की जो रिकमेंडेशन है, इसको भी आप सर्टिफिकेट देना है. तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको चेक करना है कि वेदर ज्वाइंट कस्टडी है कैश वगैरह के लिए, रोटेशन ऑफ स्टाफ, जो नीरव मोदी का केस है इसी में आया है, रोटेशन ऑफ स्टाफ ड्यूटीज. वो LC के लिए एक स्टाफ कई टाइम से चेंज ही नहीं किया उन्होंने, तो आपको चेक करना है रोटेशन ऑफ स्टाफ ड्यूटीज है या नहीं है. देन कंप्लायंस ऑफिसर है बैंक में या नहीं है. देन जो आपका EDP जहाँ पे सर्वर है, वहाँ पे रिस्क एंट्री है या नहीं. बेसिकली तो हम लोग ही वहाँ पे बैठ के लंच करते हैं. देन रिक्विजिशन स्लिप, कि सिर्फ चेक के बेसिस पे आप कैश विड्रॉ होगा, या रिक्विजिशन स्लिप भी है, उसमें भी यस नो लिख देते हैं. देन मे आई हेल्प यू का काउंटर है कि फर्स्ट कस्टमर शुड गो टू द मे आई हेल्प यू, तो बैंक में कहीं मे आई हेल्प यू का काउंटर नहीं होता. तो विदाउट सीइंग एनीथिंग आप यस नो ना करिए. चाहे वो घोष जलानी रिपोर्ट है, अदर सर्टिफिकेट्स हैं, चेक इट थोरोली, या किसी की ड्यूटी लगाइए. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अकेले ही सारा ऑडिट कर रहे हो. यू शुड हैव सम गुड टीम. एंड आफ्टर दैट UDIN.
एंड वन थिंग आई फॉरगेट, जो भी ये रिपोर्ट्स हैं, जब आपका ऑडिट्स कंप्लीट हो रहा है, एट लीस्ट वन डे, स्पेयर वन डे फॉर द सर्टिफिकेट आपको साइन करने के लिए चाहिए। कई बार हमें लगता है कि यस 1 घंटे में ही साइन हो जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप ऑडिट प्लान में, अपना ऑडिट प्लान या ऑडिट प्रोग्राम में वन एक्स्ट्रा डे उसको लेके चलिए कि आपको सर्टिफिकेशन और साइन में, ऑडिट रिपोर्ट्स में, यूडीआईन में मिनिमम वन डे आपका लगेगा। तो यूडीआईन भी आपको जनरेट करने हैं, डोंट फॉरगेट इट्स द यूडीआईन बाय द आईसीआई। तो कितने यूडीआईन जनरेट करने हैं? 2 UDIN and also 2 UDIN for different branches. One is for the tax audit report, another one is for the audit report, LFAR and all other certificates. Clear? And after that, now audit complete, अपने reports generate कर दी, report submit कर दी, UDIN भी generate कर दिया. Now what to do after बैंक ब्रांच स्टैच्यूटरी ऑडिट? सो पोस्ट बैंक ब्रांच ऑडिट आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग, जो भी आपका ऑडिट का फीस है, इसके ऊपर भी अभी हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो कि जो फीस है, इट्स बेसिस ऑफ एडवांसेस एंड दिस फीस हैज नॉट बीन रिवाइज्ड फ्रॉम लास्ट 9-10 years। तो हो सकता है दिस ईयर फीस भी रिवाइज्ड हो जाए। सो आपको जो बिल है, वो फीस का बिल कई बार तो वहीं आपको सबमिट कर देते हैं ब्रांच में ही, एंड सम टाइम कुछ 1-2 बैंक हैं जो साथ के साथ ही आपको रिम्बर्स कर देते हैं, बट सम टाइम इट टेक्स 2-3 months। तो आपको ऑडिट फीस का साथ के साथ जनरेट करना है एंड सबमिट टू द ब्रांच। एंड आल्सो आपके कोई टीए या डी है, इफ द यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ आउटसाइड ब्रांच, लोकल में तो मिलता नहीं है, बट फिर भी आपको अटेंडेंस शीट है ब्रांच मैनेजर से साइन करवानी है कि हु आर द योर ऑडिट स्टाफ, आप पार्टनर्स या फिर पेड स्टाफ कौन है, कौन कौन ऑडिट पे गए, तो उसकी एक अटेंडेंस शीट प्लीज टेक इट फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर। एंड लास्ट इज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अभी आईसीआई ने एक पीयर रिव्यू रिवाइज किया, नाउ इट्स इनटू द सम डिफरेंट स्टेजेस। दे आर डूइंग द पीयर रिव्यू फॉर ऑलमोस्ट ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो अगर आपने बैंक ऑडिट भी किया है तो इन द लास्ट लेवल, जिसने बैंक ऑडिट भी किया उसके ऊपर भी पीयर रिव्यू होगा। एंड you have to give the documentation, you must have the documentation। तो डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ऐसे 230 के ऊपर। बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है, जितना भी आप काम किया है उसको एक फाइल में, आइदर इट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको रखने हैं। फॉर एग्जांपल लाइक अपॉइंटमेंट लेटर, जो आपने अपॉइंटमेंट लेटर आया, देन द रिटर्न कम्युनिकेशन जो आपने कम्युनिकेट किया टू द प्रीवियस ऑडिटर्स को, ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। वन थिंग आई फॉरगेट, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका फॉर्मेट आपको आईसीआई गाइडेंस नोट में, अदरवाइज आई विल सेंड यू। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर आपको ब्रांच मैनेजर को भेजना है एंड उनसे साइन करवाने हैं। स्टार्टिंग में यू कैन सेंड इट आउट, या जब ब्रांच में जाएंगे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, उसमें कुछ आपको कंडीशंस वगैरह हैं दैट यू कैन डू एंड उनसे साइन करवा सकते हो। देन इज जो आपके आरबीआई के मास्टर सर्कुलर एंड दैट सर्कुलर नोटिफिकेशन, या जो आपके बैंक्स पॉलिसीज हैं, दैट इट इनटू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देन जो आपने ऑडिट किया है, जो ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लानिंग, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लास्ट ईयर की प्लस करंट ईयर्स की हैं, देन जो एक मैनेजमेंट सर्टिफाइड ट्रायल बैलेंस है, वेरियस ऑडिट रिपोर्ट्स, लिस्ट ऑफ लेटेस्ट एंड अपडेट स्टॉक जो आपसे पार्टीज किया है। तो दैट ऑल यू हैव टू डू इनटू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। So this is basically an overview of the bank branch statutory audit, and this is for those who are doing it first time, and not for, and this is not for you can check it out, I can't say this is not for the others। yes, आप